Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Niharika Bhuvania and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद निहारिका। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाते हैं। और आज की प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, स्टूडियो में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, थैंक यू। और अब हेडलाइंस के साथ हैं निहारिका भूवानिया। Benchmark domestic indices end with moderate gains. Sensex adds over 100 points. Nifty closes at 25,108. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches real-time foreign currency settlement system in Gift City. And government sets target of 3 lakh crore rupees for defence manufacturing by 2029, says Defence Minister Rajnath Singh. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक मामूली बढ़त पर हुए बंद। सेंसेक्स में 100 अंकों से अधिक की वृद्धि हुई। निफ्टी 25,108 पर हुआ बंद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गिफ्ट सिटी में रियल टाइम विदेशी मुद्रा सेटलमेंट प्रणाली को लॉन्च किया। और सरकार ने 2029 तक रक्षा विनिर्माण का 3 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी दी। And before we move ahead, we would like our listeners to take note that the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. और इस आवश्यक सूचना के बाद आइए लेते हैं आज की पहली खबर। प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी लगातार चौथे सत्र बढ़त दर्ज करते हुए मामूली बढ़त पर बंद हुए। हालांकि कारोबार के आखिरी घंटे में चुनिंदा सेक्टरों में मुनाफा वसूली के चलते बाजार दिन के उच्चतम स्तर से नीचे बंद हुए। सेंसेक्स 0.17% की वृद्धि के साथ 137 अंक बढ़कर 81,927 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 0.12% की तेजी से 31 अंक बढ़कर 25,108 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां रुख मिला जुला था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.4% से अधिक की बढ़त में रहा, लेकिन स्मॉल कैप सूचकांक में 0.1% से अधिक गिरावट दर्ज हुई। Benchmark domestic equity indices, Sensex and Nifty ended with moderate gains today, extending rising streak to 4th consecutive session. However, the markets closed off days high amid profit booking in select sectors during the last hour of trade. The Sensex added 137 points or 0.17% to close at 81,927, while Nifty added 31 points or 0.12% to settle at 25,108. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange closed mixed. The mid-cap index increased over 0.4%, while small-cap index dipped over 0.1%. सेंसेक्स में शामिल 30 में से 16 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज हुई। सबसे अधिक गिरने वाला शेयर था एक्सिस बैंक, जिसमें 2.1% से अधिक नुकसान दर्ज हुआ। टाटा मोटर्स में 2% गिरावट दर्ज हुई और ट्रेंट का शेयर लगभग 1.8% लुढ़क गया। सबसे ज्यादा बढ़त वाले शेयरों में HCL टेक और भारती एयरटेल प्रत्येक में 1.4% की बढ़त दर्ज हुई। अल्ट्राटेक सीमेंट में 1% की वृद्धि हुई और पावर ग्रिड में 0.9% से अधिक बढ़त दर्ज हुई। Among the sectoral indices at the BSE, 11 out of 21 sectors logged gains except industrials, which remained unchanged. Among the top gainers, telecommunication advanced over 2.1%, realty rose 1.1%, and energy as well as oil and gas both added almost 0.5%.
Among the laggards, FMCG dropped 0.5%, services dipped 0.3%, and metal slipped almost 0.3%. So today the markets, in the day, there was around 0.5% surge, but then they ended moderately. What would you say to that? Markets are in a consolidating mode actually, because global headwinds or the domestic support now are supporting the market to consolidate at this juncture, because now we have a great gain in the market during the last 3-4 days. So now markets are looking ahead for the stability at the global level, because Russia-Ukraine war is deepening day after day, and trade tensions remain same between the many countries, and particularly India and US are still in the trade trouble. There is no respite from the Trump tariffs, and there is no settlement of the bilateral trade agreement, though the talks are continue and very positive talks are continue, but markets are waiting for some solution, plausible solution of the high Trump tariffs, so that the economy in its great shape becomes more and more strong to perform well in the global marketplace, and our exports remain intact in the coming times. So, डॉक्टर शर्मा, आपने अभी बोला, खुद ही बोला कि अभी 3-4 दिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा. इनफैक्ट जब से अक्टूबर शुरू हुआ है मोर देन 1500 पॉइंट सेंसेक्स बढ़ा है, और आज जो शुरुआत भी हुई थी वो स्ट्रांग हुई थी. तो ये जो स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण दिखाई देते हैं आपको? देखिए, इसमें 3 फैक्टर मेजर हैं. एक तो हमने जो जीएसटी की रिफॉर्म्स की, उनका बहुत अच्छा प्रभाव आना शुरू हो गया है. उससे जो फेस्टिव डिमांड है बहुत तेज गति से बढ़ी है, जिसको हम फेस्टिव इकोनॉमी बोलते हैं, जो हर एक साल हमें एक बहुत अच्छा इकोनॉमी को बूस्ट देके जाती है, और हमारा जो जीडीपी है उसे काफ़ी सपोर्ट लेता है फेस्टिव डिमांड से. और दूसरा जो ग्लोबल हेडविंड्स है, जिनसे हमने अपने आप को काफ़ी मिटिगेट किया है, जैसे कि रुपये भी अभी थोड़ा स्टेबिलिटी में आना शुरू हुआ है बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी. जो एफआईआई इन्फ्लोज थे वो वापस इंटैक्ट हुए हैं. और तीसरा जो है इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी का एक उस शेप में आना जो बिनाइन कंडीशंस में, और आरबीआई का एक ऐसा सॉफ्ट स्टांस जो भी आने वाले टाइम में हमने देखना है, और अभी भी जो स्टेबल है. तो ये 3 फैक्टर बहुत अच्छे सपोर्टिव हैं, जो इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं, मार्केट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, और जिससे आज एक एक्सपायरी डे भी था जो ऑप्शंस का, जिसकी वजह से थोड़ा मार्केट्स में वॉलेटिलिटी रहती है. कई बार रोल ओवर होते हैं या फिर स्क्वेयर ऑफ होते हैं, जिससे मार्केट्स थोड़ी सी वॉलेटाइल हो जाती हैं. वो हर एक पहले जैसे थर्सडे को देखने को मिलता था, अभी वो शिफ्ट होके ट्यूसडे को हमें देखने को मिलता है. लेकिन ओवरऑल जो मार्केट्स हैं वो बहुत ही रेजिलियंट है. मैं ये कहूँगा कि आने वाले टाइम में जो भी हेडविंड्स हैं, जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं या फिर जो जियो पॉलिटिक्स है, उनका कोई ज़्यादा असर हम मार्केट्स के ऊपर आने वाले टाइम में नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट्स ने बहुत अच्छी स्ट्रेंथ जो पिछले 3-4 महीने में दिखाई है. इनफैक्ट सारी ग्लोबल मार्केट्स ही हाईज पर है, यूएस मार्केट्स भी ऑल टाइम हाईज पर है. यस सर, ये आपने बहुत अच्छा पूछा सोनू जी, क्योंकि जो अभी ग्लोबल इकोनॉमी में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. जो ये प्रॉब्लम्स हुई हैं ये हमने खुद क्रिएट की हैं, खास करके पहले यूएस ने जो क्रिएट की, उसके बाद रशिया यूक्रेन का जो. अदरवाइज जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो बहुत ही अच्छे मोमेंटम में आ सकती है. जो अगर ये ट्रबल्स नहीं हो, जियो पॉलिटिक्स पीसफुल हो जाए या स्टेबल हो जाए, या फिर ट्रम्प टैरिफ्स जो है रैशनलाइज हो जाए, नॉर्मलाइज हो जाए, तो मार्केट्स में टॉक्स तो चल रहे हैं. आपने देखा होगा कि शुरू में जो ग्लोबल ग्रोथ है वो हाई प्रोजेक्ट किया गया था, उसके बाद फिर उसमें करेक्शन की गई, वापस अभी थोड़ा सा इजाफा किया गया है, क्योंकि काफी जो चीजें सेटल हुई हैं और जो बाकी हैं वो आने वाले टाइम में सेटल होने की उम्मीद है. जैसे कि हमारी ट्रेड टॉक्स हैं जो वो आने वाले टाइम में हम देख रहे हैं कि स्टेबल होंगी, और हमें जो ग्लोबल ट्रेड है उसे भरपूर जो है लाभ होगा. हम चर्चा को जारी रखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस मार्केट मंत्र में आइए. मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है. करेंसी बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले बिना किसी बदलाव के 88 रुपये 77 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 98.36 पर था. और अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का.
प्रमुख एशियाई बाजारों में आज बढ़त का रुख था। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 1.1% से अधिक बढ़ गया और जापान का निक्केई 225 सूचकांक सकारात्मक रुझान के साथ स्थिर रहा। इस बीच चीन, दक्षिण कोरिया और हांगकांग के बाजार अवकाश के कारण बंद रहे। प्रमुख यूरोपीय सूचकांक आज सकारात्मक दायरे में कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक लंदन का FTSE 100 0.2% से अधिक बढ़ गया था। जर्मनी के डैक्स में 0.1% से अधिक तेजी थी। हालांकि फ्रांस का CAC 40 लगभग स्थिर ही था। And as for the US markets, US stocks displayed a mixed trend on Monday. Among the major indices, the S&P 500 and the Nasdaq registered record closing highs as artificial intelligence-related deal-making boosted investor sentiment. The tech-heavy Nasdaq Composite Index rose 0.7% to close at 22,942, and S&P 500 added over 0.3% to end at 6,740. Conversely, the Dow Jones Industrial Average dipped 0.14% to end at 46,645. Well, the US economy has been in the news for a lot of reasons. What are your thoughts on the current situation there? Because now the investors are waiting for the another rate cut by the Fed in the coming times, because they have shown some interest or some their vision that they are going to cut the Fed rate in the coming times too. So that is providing a great support to the markets and boosting the sentiments of the investors. That's why the markets are resilient and I believe stable also. And going forward, the expectation can be fulfilled if the inflation remains benign in the coming times. But if inflation goes up, then that will be a problematic thing for the US economy, because they have increased the tariff significantly. So that may cause some upside in the inflation or elevated inflation in the coming times. But inflation cools down from here of the level of 2.9% to less than 2.5%, then there is a great scope to cut the Fed rate by another 25 basis point in the coming times. And investors and the people are expecting that there will be a great cut in the 2025 by Fed in the rates. और अगर हम सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसी की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है उन्होंने हालांकि अभी कटौती नहीं की रेपो दर में, लेकिन जो उन्होंने कॉर्पोरेट्स के लिए जो क्रेडिट कंडीशंस को बहुत रिलैक्स किया है और जो उनकी कमेंट्री आई है, उसने आपको लगता है कि बढ़ावा दिया है मार्केट के सेंटिमेंट को? जी बिल्कुल, उन्होंने इस बार स्ट्रक्चरली सपोर्ट किया इकोनॉमी को, क्योंकि खाली रेट कट करने से ही सब कुछ नहीं होता और इकोनॉमी की स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है। जैसे हम ग्रो किए हैं 7.8% पे ग्रो किए हम फर्स्ट क्वार्टर में, तो इकोनॉमी एक अच्छे रेजिलिएंट मोड में है। और आरबीआई ने इस समय पे ये ठीक समझा कि जो ज़्यादातर स्ट्रक्चरली हम सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने फॉरेक्स मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर फोकस किया है, फिर उन्होंने जो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स हैं, कंज्यूमर बिहेवियर, उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया है। तो काफ़ी जो स्टेटमेंट है उससे हमें इंडिकेट हो रहा है कि आरबीआई जो इकोनॉमी की जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ्स हैं उनको सपोर्ट करने में ज़्यादा फोकस अभी कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी रेट कट कर चुके हैं और आने वाले टाइम में अगर इन्फ्लेशन स्टेबल रहता है तो और भी स्कोप बन सकता है। अदरवाइज हमारी इकोनॉमी बहुत ही अच्छे स्थिति में 7.8% इज अ ग्रेट नंबर एज कम्पेयर्ड विद मेनी इकोनॉमीज। उन्होंने ग्रोथ का फोरकास्ट भी बढ़ाया है और इन्फ्लेशन का फोरकास्ट नीचे किया है। यस, सो दोनों में ही अब ग्रोथ हमारी जो है 6.8% पे फोरकास्ट की गई है और इन्फ्लेशन जो एवरेज इन्फ्लेशन रहेगा 2.6%, जो बहुत ही उनके विद इन द आरबीआई टारगेट है। तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स के बावजूद ही ऐसे डिसीजंस लेके आरबीआई ने इकोनॉमी को स्ट्रक्चरली सपोर्ट किया है। And with that, it's time for another short break. Stay tuned with us. मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। लेते हैं अगली बड़ी खबर। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत में आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान को जून के अपने पूर्व अनुमान 6.3 से बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। इसके लिए विश्व बैंक ने मजबूत घरेलू मांग, प्रबल ग्रामीण विकास और वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी सुधारों के सकारात्मक प्रभाव को कारण बताया है। अपने नवीनतम दक्षिण एशिया विकास अपडेट में विश्व बैंक
बैंक ने कहा है कि मजबूत उपभोग वृद्धि के बल पर भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। विश्व बैंक ने इस वर्ष दक्षिण एशिया में विकास दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि 2026 में इसके 5.8% तक धीमी हो जाने का अनुमान लगाया गया है, जो अप्रैल के 0.6% अंकों की गिरावट के पूर्वानुमान से कम है। डॉक्टर शर्मा, क्या कहेंगे आप, जो घरेलू मांग है हमारी, उसका हवाला जो दिया है वर्ल्ड बैंक ने, और उन्होंने भी अपना जो उनका था फोरकास्ट इंडिया जीडीपी ग्रोथ को लेकर उसको बढ़ाया है। ये एक तरह से एक इंटरनेशनल एंडोर्समेंट भी मिल रहा है जो आरबीआई ने बढ़ाया है उसको। जी बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक ने भी हमारा ग्रोथ में इजाफा किया है, और घरेलू मांग जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जीएसटी के रिफॉर्म से काफ़ी बूस्ट मिला है, सेल्स बहुत इंक्रीज हुई है। हम देख रहे हैं कि कार सेल्स बहुत तेज़ गति से बढ़ी है, और जो अदर कंज्यूमर आइटम्स हैं उसमें भी बहुत तेज़ गति से इजाफा हुआ है। बल्कि जो सप्लायर्स हैं उनको काफ़ी चुनौतियां आ रही हैं कि जो डिमांड है उसको कैसे फुलफिल किया जाए। तो ऐसे इसमें क्या होगा कि आने वाले टाइम में देन द फैक्ट्रीज ऑल्सो एक्सपेंड देयर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है। तो जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगा देन एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जीएसटी के आने से एक बहुत बिग बूस्ट जो है इकोनॉमी को मिला है, जिससे कि आरबीआई ने तो इंक्रीज किया है हमारा जो ग्रोथ का मापदंड है, वर्ल्ड बैंक ने भी आने वाले टाइम में अभी जो आईएमएफ का रिव्यू आएगा अक्टूबर के लास्ट वीक तक, तो उसमें भी हमें आशा है कि एक सिग्निफिकेंट इजाफा जो है हमारी ग्रोथ में किया जाएगा, जो आरबीआई के लेवल के पास ही होगा। हम समझते हैं कि 6.8% के आसपास ये ग्रोथ लगता है कि बड़ी ब्रॉड बेस्ड है, क्योंकि उन्होंने खास तौर से ग्रामीण विकास को मेंशन किया है कि वो भी मजबूत रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारी ग्रोथ स्ट्रक्चरली बहुत स्ट्रांग है। हमने देखा कि जो रेजिलियंस हमने कोरोना के काल में देखी, जो हम खाली एक ही क्वार्टर में थोड़ा नेगेटिव गए थे, उसके बाद हमने वापस रिवाइव करना शुरू कर दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर का हमें बहुत अच्छा बूस्ट मिला उस टाइम पे, और जो ग्रामीण विकास, जब एग्रीकल्चर ग्रो करता है तो हमारा जो रूरल डेवलपमेंट है, रूरल इकोनॉमी है, वो भी अच्छे से ग्रो करती है। और हमने देखा है कि पिछले काफ़ी सालों से, लगभग कोई 10-12 साल से जो एवरेज ग्रोथ है, जो एग्रीकल्चर का जो एवरेज ग्रोथ है वो 3% से ज़्यादा है, जो पहले के डेकेड्स में ऐसे नहीं था। तो एग्रीकल्चर कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, जो कि एक रूरल इकोनॉमी को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, जिससे कि ओवरऑल जो ग्रोथ है बहुत मजबूत हो गई है। अभी डिस्पाइट सो मेनी हेडविंड्स जो हम देख रहे हैं कि कभी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कभी टैरिफ्स हो रहे हैं, तो डिस्पाइट दो डेवलपमेंट्स वी आर ग्रोइंग इन अ सिग्निफिकेंट हाई ट्रैजेक्टरी। और अब समय हो गया है एक और ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। And with that, once again, welcome back to Market Mantra. Let's take you through the next story now. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that the government has saved 4,31 crore rupees with the use of direct benefit transfer. The minister today launched foreign currency settlement system in Gift City at Global FinTech Festival in Mumbai. She said that this system will complete foreign currency transactions within Gift City on a real-time basis. Currently, it takes 36 to 54 hours to settle foreign currency settlement in Gift City. GIFT IFSC will now join a select list of financial centers that include Hong Kong, Tokyo, Manila, and so on, that have the infrastructure to settle foreign currency transactions locally. So together, these initiatives spanning policy, infrastructure, AI, innovative culture, and also regulations illustrate how Government of India has laid the groundwork for a vibrant, inclusive, and forward-looking fintech ecosystem. So, Dr. Sharma, what do we know so far about the specifics of this system? And also, do you think it's going to be useful in liquidity management and operational resilience, and thereby, adding to the ease of doing business? Yes, because this has supported us significantly during the Corona period also, like direct benefit transfers were on the basis of financial technologies, and thereafter significantly supporting the MSMEs and startups, because this is a great system to support the digital economy, and we are becoming more and more robust in the digitalization, and we are the best
pay masters in the global economy. Best pay, our payments are rated at the timely manner at the global level, and we are the fastest moving digital economy at the global level. So all these developments are on the basis of our financial technologies, fintech, and going forward, I believe as we are approaching more and more towards digitalization and artificial intelligence, so this will support the growth of the economy and make it more and more resilient in the coming times to mitigate the impact of global headwinds and to speed up the strength of the economy. और अब चलते हैं अगली खबर की ओर। सरकार ने वर्ष 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा निर्माण में अवसर विषय पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का रक्षा निर्यात 24,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता अब केवल नीतियों और घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कार्रवाई, प्रभाव और व्यापक स्वीकार्यता के चरण में पहुंच चुकी है। आज जब हम 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें 3 बड़ी बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहला, यह कि क्रिटिकल डिफेंस कैपेबिलिटीज में हमें हाई डिग्री ऑफ सेल्फ रिलायंस अचीव करनी होगी। दूसरा, हमें रक्षा के क्षेत्र में प्रोमिनेंट ग्लोबल एक्सपोर्टर बनना ही होगा। थर्ड, कटिंग एज टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स में भारत को आगे ले जाने के लिए, एक लीडर बनाने के लिए हमें कुछ नए नीश टेक्नोलॉजीज में भी एडवांसमेंट हासिल करनी ही होगी। And with that, let's move on to the next story. The GST Bachat Utsav, which was announced by Prime Minister Narendra Modi and commenced on 22nd of last month, is benefiting all sections of society. Today, our correspondent brings a report on the GST reforms that will boost the economy of the national capital, Delhi. GST rate cuts are expected to give a significant boost to consumers and businesses in the national capital, Delhi. Cheaper essentials, stronger markets, and new opportunities for Delhi's businesses are at the heart of the latest GST reforms. Under the new tax structure, GST on hotel rooms priced below 7,500 rupees has been cut down to 5%. This tax reduction will increase footfall in hotels and also give a boost to Delhi's tourism sector. The GST cut on footwear and finished leather, along with furniture, printing, and stationery items, will lower the final prices and ease any working capital strain on small traders. Overall, these measures will lower everyday spending for households and also strengthen MSMEs. These reforms will provide a multi-sectoral advantage to Delhi's economy. The rate cuts will not only provide immediate relief to consumers, especially in the upcoming festive season, but also set a path for long-term benefits such as more jobs and resilient markets. With Saklain and Soumya, Rishu for Akashvani News, Delhi. So, Dr. Sharma, very, very briefly, we've seen breakneck festive demand during this GST Bachat Utsav. But what about the supply side? Has it been able to keep up with this demand? Yes, because we have great capacities so far, as I mentioned earlier also, that we have to now expand our capacities to the next level, because now the demand trajectory is becoming more and more strong, and that will support not only the consumers but also producers and the employment creation in the country in the coming और अब times. चले कमोडिटीज की ओर। As for global crude oil prices, they were almost flat today. Brent crude was trading flat at $65.48 per barrel. And WTI crude was also trading nearly unchanged at $61.68 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, 24-karat gold was trading 0.3% up at 1,20,810 rupees per 10 grams. And silver was trading nearly flat at 1,47,790 rupees per kilogram a short while ago. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ताज़ा समाचार मिलने तक दिसंबर अनुबंध वाला सोना 0.3% से अधिक बढ़त के साथ 1,20,698 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं दिसंबर अनुबंध वाली चांदी लगभग 0.1% की तेजी से 1,47,700 रुपए प्रति किलो पर थी। जो हम लेवल्स पर पहुंचे हैं सोने और चांदी के, क्या अभी अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपकी क्या एडवाइस होगी, क्योंकि बहुत लोगों को फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
देखिए, इसमें एक SIP का जो इन्वेस्टमेंट प्लान है अडॉप्ट किया जा सकता है, क्योंकि अभी इस लेवल पे सीधे तौर पे इन्वेस्ट करना जोखिम हो सकता है क्योंकि प्राइसेस काफ़ी ऊपर है। लेकिन आने वाले टाइम में प्राइसेस इंटैक्ट रहेंगे, ये भी साथ में है, क्योंकि जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं, जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं, वो सभी गोल्ड को सपोर्ट कर रही हैं। और दूसरा, ये एक फाइनेंशियल एसेट बन गया है। पहले ये एक पहनने का चीज था, नाउ दिस हैज बिकम अ ग्रेट फाइनेंशियल एसेट टू इन्वेस्ट इन। And with that, I think we're almost at the closing. So before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices end with moderate gains. Sensex adds over 100 points. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches real-time foreign currency settlement in Gift City. And government sets target of 3 lakh crore rupees for defence manufacturing by 2029. And with that, it's a wrap on today's Market Mantra. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra.